वेरी गुड मॉर्निंग। तो लास्ट सेशन में बताया था कि मार्क्स कैसे आएंगे, उसी पे डिस्कस किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था कि मार्किंग कहां कहां से हमको, मतलब कहां कहां से हम क्वेश्चन करेंगे हमारे मार्क्स 85 तक आ जाए। आज मैं बताऊंगा टॉपिक इस सेशन में कि कौन कौन से टॉपिक आप करेंगे, पहले किस किस टॉपिक उठाएंगे, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे पहले। अब आर्बिट्री करेंगे। आर्बिट्री करने का मतलब ये नहीं कि आपने सिलेबस तो पूरा पढ़ा ही हुआ है, जो कि हमने आगे डिस्कस कर चुके हैं सेशन 1 में। तो आप सिर्फ एक एक टॉपिक उठाएंगे, कहां कहां से उठाना है, आर्बिट्री टॉपिक उठाएंगे और अपने मार्क्स को सिक्योर करेंगे, राइट। और देखेंगे कि उसमें से कोई टॉपिक अगर ऐसा है जो आपको नहीं आता है तो उसको पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट। ओके, तो जैम मैथ्स टॉपिक, वन बाय वन आप ऐसे ही चलेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक दैट इज चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। एक टॉपिक, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, ये जान जाएंगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। टॉपिक नंबर 2 दैट इज सरफेस एरिया। टॉपिक नंबर 3 दैट इज ग्रीन्स थ्योरम। टॉपिक नंबर 4 रीजन बाउंडेड बाय ट्रायंगल and tetrahedron. Topic number 5 gradient, divergence, curl and their properties, right. Topic number 6 that is very simple, that is rank of a matrix. Topic number 7 eigenvalues and eigenvector. Topic number 8 that is homomorphism. In group theory. Topic number 9. What is topic number 9? That is line integral. Line integral conservative field. This topic number 10. Topic number 11 directional derivative. टॉपिक नंबर 12 सबस्पेस। टॉपिक नंबर 13 लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। टॉपिक नंबर 14 बेसिस एंड डायमेंशन of kernel T and range T. Topic number 15 linear transformation. इसमें किस टाइप का क्वेश्चन, T of AB, फाइंड T of AB, इस टाइप क्वेश्चन कि LT है कि नहीं। This topic number 16 exact and integrating factor. Topic number 17 linear equation. Topic number 18
linear differential equation with constant coefficient. Topic number 19, homogeneous. Topic number 20, orthogonal trajectory. Topic number 21, matrix of linear transformation. That is T of beta gamma, this type question. Topic number 22. What is topic number 22? That is the very important, that is Wronskian in differential equation. Topic number 23, infinite series, sum of series. Topic number 24, absolute convergent and conditionally convergent. Topic number 25. Topic number 25, that is the one of the most continuity and differentiability. Of two variables. Topic number 26, 100% question from this and this, that is Lagrange's multiplier. Topic number 27. The topic number 27, monotonic sequence. Topic number 28, limit superior and inferior. Topic number 29. What is topic number 29? क्या डालेंगे 29 में? पता है आपको कुछ? That is the very important topic. Rolle's LMB. Rolle's LMB theorem. Topic number 30. That is one of the most and very easy. That is power series. Topic number 31. That is Taylor's and Maclaurin series. Topic number 32, partial differentiation. Topic number 33. What is topic number 33? Continuity and limit, that is indeterminate form. Topic number 34, that is definite integral. That is limit as a sum. That is property based. Definite integral, property based. Topic number 35, definite integral, limit as a sum. Topic number 36, Riemann integral. What is Riemann integral? रेंज, जिसमें किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू वैल्यूएट नहीं कर सकते, लेकिन रेंज बता सकते कि इस रेंज के बीच में उसकी वैल्यू लाई करेगा. राइट, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग.
ठीक है। रेंज लाइक अपनी क्लास में, मैं जनरल क्लास की बात कर रहा हूँ, अपनी क्लास की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन कराए लाइक दिस कि 0 to 1 e to power x square dx दैट लाइज इन द रेंज। इस टाइप का क्वेश्चन कि इसकी वैल्यू कहां लाई करेगी, इस टाइप के क्वेश्चंस, दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट 37 दैट इज 37 इज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोक्स थ्योरम। 38 Gauss theorem, Gauss divergence, and 39 what is 39 surface integral। इसको हम बाद में लिखेंगे, अभी नहीं। Then one is subgroup, order of an element, then 40 cyclic group, 41 that is one of the most important limit point, and 42 that is एक ही क्वेश्चन में सब कुछ, that is the question like this, find the range, मतलब एक आपका दिया रहेगा सेट टाइप का क्वेश्चन, उसमें कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, ओपन सेट, क्लोज सेट, डिराइव सेट, क्लोजर, इंटीरियर। एक ही क्वेश्चन के अंदर सब कुछ आ जाता है कि एक सेट है कि ओपन सेट है कि नहीं है, क्लोज सेट है कि नहीं है, इंटीरियर है कि नहीं है, डिराइव सेट क्या होगा, इसका आपका कनेक्टेडनेस है कि नहीं, कॉम्पैक्टनेस है कि नहीं। तो ये सारा कुछ एक ही क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। और मैंने अपनी क्लास में, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बहुत लोग नहीं किए होंगे जो कि नहीं किए बहुत लोग, लेकिन जो लोग किए होंगे उनकी बात कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन आप देखिएगा, मैंने दिया भी हुआ है, कराया भी हुआ है, आप इसको जरूर करिएगा, बिल्कुल करिएगा। 42 देन 43 इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी of one variable। 44 that is one of the most important। आप सीक्वेंस जब आपने पढ़ा होगा तो सीक्वेंस में आपके 4 या 5 थीम के पास आते हैं, दैट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉशी first theorem on limit, Cauchy second theorem on limit, Squeeze theorem। इस टाइप के आपके दैट इज द 6th थ्योरम है। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस 6 थ्योरम्स, इस पे आपका क्वेश्चन रहता ही रहता है, बिल्कुल रहता है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज क्या छोड़ा हमने, अभी छोड़ा है मैंने, दैट इज 45 इज मैट्रिसेस एंड दैट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेफिनेशन, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, then orthogonal matrices like this। point number 46 भाई, point number 46 is normal subgroup। point number 47 that is Lagrange's theorem and coset। point number 48, what is point number 48? 48 point is that is
What is the point number 48? 1 1 on 2. Point number 49. 49 is, ठीक है, that is discard rule of sign. मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स या नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कितने होंगे. एंड पॉइंट नंबर 15, 50. व्हाट इज 50? व्हाट इज 50? क्या बचा आपका? सुना है? बीटा एंड गामा फंक्शन. देन पॉइंट नंबर 51, डबल इंटीग्रल. पॉइंट नंबर 52, ट्रिपल इंटीग्रल. पॉइंट नंबर 53, सरफेस इंटीग्रल. सरफेस इंटीग्रल. ठीक है, ये मैंने काफी हद तक आपका कवर किया. और एक और पॉइंट नंबर 54, परमुटेशन ग्रुप. इतने टॉपिक में आपके 60 क्वेश्चन बन जाएंगे. ठीक है, अब आएगा कि ये जितने भी हमने टॉपिक मेंशन किया आपको स्टार्ट कैसे करेंगे. चलिए, इसमें भी मैं आपको कुछ चीजें कर देता हूं आपको. सबसे पहले बिल्कुल सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे इसमें. सबसे पहले आप सरफेस एरिया, दिस, देन आपका ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, देन रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू, देन आपका लिनियरली सब स्पेस, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, लिनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, then power series, Taylor's and Maclaurin series, like, then partial differentiation, indeterminate form, definite integral limit as a sum, then sum of series, Wronskian, orthogonal trajectory, exact integrating factor, this. ठीक है, function of two variable. Where is function of two variable? Continuity and differentiability of two variable. अगर हम इतने की बात करें तो आप देखेंगे दिस इज सरफेस एरिया, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स. ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल, ऑलवेज दैट इज 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स. तो 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12, 1 marks. 13, then 14, then 15, then 17, then 19, then 21, then 23, then 25, then 27, then 29, then 31, 32, 34, 36, 36 to 40 आपका सीधे बिल्कुल ऐसे है 40-45 मार्क्स तक. और भी टॉपिक है जो बहुत इजी है, जो आप कर सकते हैं. तो आप जो है आर्बिट्री टॉपिक उठाएंगे, इस तरह से आप टॉपिक उठाएंगे और ऐसे आप पढ़ने की कोशिश करेंगे. बिल्कुल आपका कितने टॉपिक है? 50 टॉपिक है. 50 टॉपिक है. एक दिन के अंदर आपको 10 टॉपिक पढ़ने हैं. आप 10 टॉपिक पढ़ने हैं. अगर आप 14 to 15 आवर्स, 16 आवर्स पढ़ते हैं तो एक दिन में 10 टॉपिक आप रिवाइज कर सकते हैं. बहुत आसानी से रिवाइज कर सकते हैं. आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज लिख दिया है, कौन कौन से टॉपिक आपको बेस्ट है, कौन कौन से टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आते हैं. आप उस पर जाइए, उस पर कोशिश करिए कि उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे. जो आप टॉपिक स्ट्रॉन्ग करेंगे उस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है. आपको कितने पॉइंट दिया मैंने? 56, 55. और इस 55 के अंदर 60 क्वेश्चन कवर कर जाएगा आपका, बिल्कुल करेगा. राइट.
आपको 40 टॉपिक अच्छे निकालने हैं। पहले आपको कितने टॉपिक निकालने हैं अच्छे? 40, जो आपको बहुत अच्छे से आता है उसको करने हैं, और उसको करने के बाद से बाकी सारे टॉपिक करना है। इस 5 डेज के अंदर आप इस सारे टॉपिक को 1 बाय 1 आपको करने हैं। कैसे करने हैं, कैसे उठाने हैं, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं पेपर में, वो मैंने आपको सेशन में बता दिया है। सेशन 2 के अंदर ये आपके टॉपिक हैं। आर्बिट्री आप ऐसे उठाएंगे, आप ये नहीं कि एक बुक पढ़ने की कोशिश करेंगे, जहां जहां से क्वेश्चन आता है पहले उसको उठाएंगे। जैसे रैंक है, आता ही आता है। और एक टॉपिक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे छूट गया है, एंड दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज, एंड दैट इज 54 एंड देन 55। द टॉपिक इज, this topic is, that is the one of the most important question, system of homogeneous, and this topic is 55, homogeneous and non-homogeneous linear equation इन मैट्रिसेस, जहां से क्वेश्चन पेपर में रहता ही रहता है। तो वन इज दिस टॉपिक दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ऐसे आपका 55-60 नंबर तो आपको ऐसे ही बेसिक टॉपिक्स निकल जाएंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। ये आप करेंगे, बढ़िया से करेंगे, और 5 डेज के बाद आप मुझको कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। फिर पेपर से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले एक और स्लॉट देंगे, जो बिल्कुल वो चीज़ देंगे कि जो आप पढ़ेंगे उतना ही पढ़ेंगे, उस पर आप रिवाइज करेंगे, उस पर आप मंथन करेंगे, उसको बार बार देखेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, राइट। और एक बार करने के बाद से, इस 5 डेज पढ़ने के बाद से एक दिन आप बैठेंगे और पूरा का पूरा 10 ईयर आप कर जाएंगे। उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हमें आता है। 85 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है। अब कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए पेपर करना, ऑब्जेक्टिव करना बहुत जरूरी है। तो एक बार आप बैठिएगा, और 2014 से, हर साल का करने की जरूरत नहीं है, 2014 से लेकर के 2020 तक का आप सारे क्वेश्चन एक बार कर जाइएगा अच्छे से। आपको पैटर्न पता चल जाएगा, क्वेश्चन का ट्रेंड भी पता चल जाएगा, और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।